Ashabara, today we are going to solve paper 4, that is mechanics paper. The code for this paper is 9709, paper 4. This is paper 4 and variant is 2 today. This is May-June 2023 paper. The paper time is 1 hour 15 minutes. The total marks for this paper is 50 marks. Let's start this paper. We have this question number 1. In question number 1, it says a particle of mass 1.6 kg is dropped from a height of 9 meters above the horizontal ground. So let's say this is the horizontal ground here, and a particle is dropped from this height. The mass of this particle is 1.6 kg. The distance from this position to the ground is 9 meters. That is already mentioned in the question. The speed of the particle at the instant before hitting the ground is 12 meters per second. The particle hit over here on the ground. Before hitting the ground, the particle speed is 12 meters per second. They are saying find a work done against air resistance. अब देखो यहां पर एयर रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, यहां पर एयर रेजिस्टेंस है जब बॉडी नीचे आ रही है। तो जब एयर रेजिस्टेंस है तो किस एक्सेलरेशन से बॉडी नीचे आ रही है, पहले मैं वो निकाल रहा हूं। देखो यहां पर इनिशियली तो बॉडी की वेलोसिटी 0 है कि मैं यहां से इसको ड्रॉप कर रहा हूं, तो मैंने इक्वेशन ऑफ द मोशन इस्तेमाल करी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर है 2a स्क्वायर 2as के। फाइनल वेलोसिटी इज 12, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, the distance is 9 over here. So I'm going to find out the value of a over here, which is 144 divided by 2 multiplied by 9. The value of acceleration over here is going to be 8 meters per second square. Once you got the acceleration, तो देखो जब बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो बॉडी का नेट फोर्स बराबर होगा ma के. It is going to be equals to ma mass into acceleration. What is net force? जितना बॉडी का वेट है और जितनी इसकी रेजिस्टेंस अपवर्ड होगी, रेजिस्टेंस की डायरेक्शन कहां होगी, अपवर्ड होगी, तो वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड माइनस रेजिस्टेंस एम ए के बराबर हो जाएगा. वेट इज ऑब्वियसली एम जी, आर इज द रेजिस्टेंस, एम इज द मास, that is 1.6, and a is the acceleration, that is we have find out कि ये 8 है हमारे पास. तो mass is 1.6 into g, which is 10, minus r 1.6 into 8. So 1.6 into 10 is 116. It is 1.6 into 8 is 12.8. The value of r is going to be, the air resistance over here is going to be 16 minus 12.8 is 3.2. ठीक है ना. वर्क डन बाय द अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस, फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस. तो देखो वर्क डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस इनटू वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस. तो यहां पर रेजिस्टेंस इनटू डिस्टेंस हो जाएगा. द रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी 3.2 एंड डिस्टेंस इज गोइंग टू बी 9. So I'm going to have the answer here, 3.2 into 9, which is 28.8 joules work done. All right. So this is the answer for question number 1. In question number 2, two particles A and B of masses 3.2 and 2.4 kg respectively lie on a smooth horizontal table. A moved towards B
विथ स्पीड v मीटर पर सेकेंड एंड कोलाइड्स विद b। अच्छा, देखो हमने दो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, a एंड b। दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। ठीक है ना, इधर ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। ठीक है ना, द मास ओवर हेयर is going to be 3.2 and the mass over here is 2.4. Mass is 3.2 and mass is 2.4 here. Then it says A move towards B. A is moving towards B with a speed of initial speed of v meter per second and collides with B, which is moving towards A. तो देखो B के साथ कोलाइड कर रहा है A, और जो B है वो A की तरफ मूव कर रहा था, यानी दे आर मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर बेटा इसकी इनिशियल स्पीड हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। इन द कोलिजन द टू पार्टिकल्स कम टू रेस्ट, यानी इनकी फाइनल वेलोसिटी बेटा 0 हो जाएगी क्योंकि दोनों रेस्टिंग पोजीशन पर आ गए। ठीक है ना, सो दिस इज द केस सिनेरियो ओवर हियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ v, they're asking you to find out the value of v over here. This one is v. So देखो law of conservation of momentum, I'm using it. We have m1 3.2 मतलब है v प्लस 2.4 मतलब है 6, लेकिन बेटा मैं यहां पर लिखूंगा -6 मीटर पर सेकेंड क्योंकि बेटा ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, लेफ्ट साइड मूव कर रहा था। इज इक्वल टू 3.2 इंटू वेलोसिटी 2.4 इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम का ये फॉर्मूला है ना हमारे पास, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर, ये m1u1 m2u2 m1v1 m2v2, या यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बेटा 3.2 इंटू वी एज इट इज रह जाएगा, 2.4 इंटू -6 -14.4, राइट हैंड साइड तो सब जीरो हो जाएगी, तो 3.2 इंटू वी बिकॉज 14.4, तो वी की वैल्यू 14.4 डिवाइड बाय 3.2, इट इज 4.5 मीटर पर सेकेंड। सही ना, नाउ they are saying in this whole process find a loss of kinetic energy of the system due to collision। कह रहे हैं collision की वजह से लॉस ऑफ kinetic energy क्या हो गया। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। तो देखो बेटा आपके पास यहां पर अगर मैं ए ऑब्जेक्ट की बात करूं, अच्छा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितना होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है। यहां पर हाफ एम वी स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी, वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी। तो देखो आपके पास यहां पर अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ए ऑब्जेक्ट के लिए बात करता हूं आपके सामने, तो काइनेटिक एनर्जी की बात हो जाएगी हाफ मास ऑफ ए इज 3.2, वी स्क्वायर तो 0 है और यू स्क्वायर कितना है
इधर u की वैल्यू कितनी है, दिस v ओवर हियर 4.5, यू विल गेट द काइनेटिक एनर्जी ओवर हियर, तो यहां पर ये आ जाएगा -32.4 जूल्स काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी यहां पर। अगर बेटा मैं यहां पर बात करता हूं कि बी ऑब्जेक्ट की बात करता हूं, हाफ बी ऑब्जेक्ट का मास कितना है 2.4, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 6, तो बेटा यहां पर हम लोग लिखेंगे 6 का स्क्वायर, तो बेटा मेरे पास यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है, दिस -43.2 जूल्स। इन दोनों को ऐड कर लें तो पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकल जाएगा, देखो काइनेटिक एनर्जी, पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकल कर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लें, लेट्स मी मेक सम स्पेस हियर। नेगेटिव साइन को अगर आप इग्नोर करना चाहें तो इट इज गोइंग टू बी 75.6 जूल्स, नेगेटिव में कर दिया मैंने, लॉस कितना हो रहा है, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें 75.6 जूल्स, दिस इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 3, coplanar forces of magnitude 30 Newton, 15 Newton, 33 Newton, P Newton act at a point in direction shown in the diagram where tan alpha is 4/3. The system is in equilibrium. देखो मैं जब भी ये देखता हूँ ना, मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी आप ये देखो ना tan alpha 4/3, खुद से sin alpha की वैल्यू cos alpha की निकाल लो। देखो वी नो दिस के अगर tan alpha दिया हुआ है यहाँ पर 4/3, दिस अपोजिट, दिस इज एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर आएगा, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 आ जाएगी यहाँ पर। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा, अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस अल्फा एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3/5 हो जाएगा ये। सही है, डेटा मैं पहले से ही कंस्ट्रक्ट करके रख लेता हूँ, ये वाला मैंने आपको पहले भी बताया कि डेटा पहले से कंस्ट्रक्ट करके रख लें, इससे कहीं ना कहीं यूज तो आ ही जाएगा आपके पास। आओ देखते हैं किस तरह यूज आ रहा है। अब देखो मेरे पास यहाँ पर 4 फोर्सेज हैं, कोप्लेनर फोर्सेज हैं, मैं सबके कंपोनेंट्स बना रहा हूँ, और क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो लेफ्ट साइड फोर्सेस इक्वल टू राइट साइड फोर्सेस, राइट अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, ठीक है ना। तो मैंने इधर 15 न्यूटन फोर्स का इसका कंपोनेंट बना रहा हूं, और वो क्या बन जाएगा देखो, एक ये बन गया 15 और एक ये बन गया 15 साइन अल्फा, ठीक है ना। अच्छा फिर दिस इज द फोर्स दैट इज 33 कॉस अल्फा, 33 साइन अल्फा। नाउ दिस इज द फोर्स P cos अल्फा, P साइन अल्फा। नाउ दिस इज द फोर्स 30, अच्छा मैंने अल्फा कह दिया इसके लिए, इट इज थीटा, दिस इज 30 cos थीटा, दिस इज 30 साइन थीटा। सबके कंपोनेंट्स बना लिए मैंने। अब देखो मैं पहले 15 न्यूटन की लेफ्ट राइट साइड फोर्सेज हैं और लेफ्ट साइड फोर्सेज हैं, तो लेफ्ट साइड फोर्सेज में देखो हमारे पास ये आ रहा है 30 cos थीटा, फिर लेफ्ट साइड में हमारे पास ये जो मैंने पिंक कलर से बनाई हुई फोर्स, पी न्यूटन वाली फोर्स, इसका बेटा कंपोनेंट लेफ्ट साइड प्लस पी cos थीटा इज इक्वल्स टू, देखो 15 न्यूटन का पी कॉस 15 cos अल्फा राइट साइड फोर्सेस, ये ग्रीन वाली फोर्स जो 33 न्यूटन है, ये देखा 33 cos अल्फा, सही ना। देखो यहाँ पर cos अल्फा आ रहा है, ऊपर हमने सारी वैल्यूज निकाली हुई है,
हमें बेनिफिट मिल जाएगा उसका। अब मैं तमाम टर्म्स को एक तरफ करने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे 15 कॉस अल्फा प्लस 33 कॉस अल्फा, यहां पर तो हमारे पास दोनों को ऐड कर लो तो ये बन जाएगा 48 कॉस अल्फा। वी नो व्हाट इज 48 कॉस अल्फा। अल्फा की वैल्यू बेटा हमारे पास 3/5 है, तो 48 मल्टीप्लाई बाय 3/5 is 144/5, which is equivalent to, इसको थोड़ा डेसिमल में निकाल लें क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है ना, it says show that this equation, तो हमें जो प्रूफ करना है उसमें देखो डेसिमल में वैल्यूज हैं। तो 144 डिवाइड बाय 148 इंटू 3 डिवाइड बाय 5 इज 28.8। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू टेक दिस cos थीटा कॉमन, 30 प्लस p बच जाएगा यहाँ पर, एंड आई एम गोइंग टू राइट cos थीटा इज इक्वल्स टू p प्लस 30 ओवर हियर। मैंने इधर cos थीटा की वैल्यू निकाल ली, क्यों निकाली अभी आपको पता चल जाएगा। फिर बेटा को अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस, लेफ्ट साइड देखो अपवर्ड फोर्सेस ये रही, ये हो गई 30 साइन थीटा, अपवर्ड फोर्स ये हो गई 15 साइन अल्फा। देखो ये डाउनवर्ड फोर्स हो गई, बराबर होगा P साइन थीटा, और देखो ये भी नीचे 33 साइन अल्फा। अब यहां पर देखो बेटा, अगेन आई एम गोइंग टू डू द स्लाइड टर्म्स स्टफ हियर। यहां पर बेटा मैं लिखूंगा 30 साइन थीटा माइनस P साइन थीटा, और 33 साइन अल्फा माइनस 15 साइन अल्फा। तो 33 माइनस 15 इज गोइंग टू बी 18 साइन अल्फा। यहां पर बेटा साइन थीटा मैंने कॉमन निकाला, इट बिकम्स 30 माइनस P। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, 18 साइन अल्फा डिवाइड बाय 30 माइनस P, ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। सर वी हैव टू प्रूव दिस इक्वेशन, वी हैव टू शो दिस इक्वेशन। तो बेटा कोई मसला वाली बात नहीं है, हमारे पास वी नो दिस कि साइन, यहां पर कर लेता हूं, वी नो दिस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। अच्छा यहां पर मैं एक चीज और कर देता हूं, लेट्स जस्ट पुट साइन अल्फा वैल्यू हियर व्हिच इज 4/5 अपॉन 30 माइनस P। तो साइन थीटा की वैल्यू भी डेसिमल में निकाल लेते हैं, विच इज 14.4 माइनस 30 minus P. So you got the value of sin theta. Now I'm going to put these values in sin squared plus cos squared equal to 1. क्यों I'm putting it over here? क्योंकि बेटा आप देखो जो आपको प्रूफ करना था वो इसी फॉर्म में था। What is the cos squared theta? 28.8. So this is what we have to prove. See, 14.4 divided by 30 minus P का whole square, 28.8 divided by P plus 30 का whole square, which is equals to 1. तो मैंने वही काम करा, प्रूव हो गया। Now they're saying verify that P is equal to 6, satisfy the equation. So this is the equation. Let's just put P equal to 6 here. And let us see कि ये satisfy हो भी रहा कि नहीं हो रहा। 14.4 30 minus 6 whole square, 28.8 divided by P plus 30. तो P की जगह I'm putting it 6 plus 30 here, whole square equal to 1. तो देखो अगर ये 14.4 divided by 30 minus 6, 30 minus 6 24, इस पूरे को कैलकुलेटर में रखोगे you'll get the answer 9/25. 28.8 divided by 6 plus 6
6 + 30 36। इस पूरे को कैलकुलेट रखोगे, you'll get 16/25। तो आप मुझे बताओ, ये एलसीएम लेने पर 25 + 20 25 डिवाइड बाई 25, ये प्रूव हो रहा है? जी सर, हमने प्रूव कर दिया। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एज वेल। तो किसी भी इक्वेशन में, लेट्स से जैसे ये इक्वेशन है, इसमें बेटा पी की जगह 6 पुट कर दो एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। आप साइन में भी पुट कर सकते थे, किसी में भी पुट कर दें। लेट जस्ट पुट cos theta is equals to 28.8 6 + 30। तो बेटा यहां पर आप जब इन्वर्स करोगे, cos इनवर्स दिस वैल्यू, यू कैन गेट 36.86। तो 1 डेसिमल प्लेस में बेटा राउंड ऑफ कर रहा हूं, 36.9 डिग्री इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर हियर। 1 डेसिमल प्लेस में आंसर देना होता है डिग्री वाले एंगल्स को। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4, it says an athlete of mass 84 kg is running along a straight road. Initially the road is horizontal and he runs at a constant speed of 3 meters per second. The athlete produces a constant power of 60 watt. Find the resistive force which acts on the athlete. तो देखो, we need to find out the resistive force. Power का फॉर्मूला होता है force into velocity. So power is 60 watt. That's totally fine with the unit. Force we don't know, that we need to find out. Velocity is 3. So 60 divided by 3, F is going to be 20 Newton here. 1 mark questions. That's it. Now it says, देखो पहले horizontal road था. Now I say the athlete then runs up a 150 meter section of the road, which is inclined at 0.8 degree, जो 0.8 degree पर inclined हुआ हुआ है. Let me just make a diagram over here. देखो ये इंक्लाइंड सरफेस बनाई है मैंने यहाँ पर, ठीक है ना. दिस मेक्स एन एंगल ऑफ 0.8 डिग्री. इंक्लाइंड सरफेस का एंगल कितना है? 0.8 डिग्री है ना. अगेन इट इज डिग्री नॉट रेडियंस, डेसिमल का एंगल है, तो ये मत समझिएगा रेडियंस में. एंड इट इज 150 मीटर सेक्शन. द स्पीड ऑफ द एथलीट एट द स्टार्ट ऑफ दिस सेक्शन, इधर इनिशियल स्पीड इसकी बता रहे हैं, is 3 meter per second. And he now produces a constant driving force. तो बेटा ये ड्राइविंग फोर्स है which is constant and that is 24 Newton. The total resistive force which acts on the athlete along this section of the road has constant magnitude of 30 Newton. Resistive force क्योंकि इसके अगेंस्ट होगी, that is 30 Newton. Use an energy method to find the speed of the athlete at the end of the 150 meter section of the road. स्पीड मालूम करनी है कहां पर? तो यहां पर, ठीक है ना. अच्छा, एनर्जी इक्वेशन यूज करनी है. एनर्जी इक्वेशन मैंने आपको बताया था, वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स बराबर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स. अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी के लिए वी नीड दिस हाइट, वी नीड दिस हाइट. तो मैं अगर आपसे बोलूं बेटा साइन थीटा, साइन 0.8 बराबर होता है अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज. तो अपोजिट की वैल्यू 150 इंटू साइन 0.8 डिग्री हो गया. ये अपोजिट की वैल्यू आ गई. विच वन इज दिस अपोजिट? दिस वन इज अपोजिट ओवर है, तो ये इसकी वैल्यू आई है. सो आई कैन से दिस हाइट ओवर हियर इज 150 इंटू साइन 0.8 डिग्री. यहां पर लिख दिया मैंने.
ये इसकी हाइट हो गई। जस्ट फॉर द सेक ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मैंने फाइंड आउट करके यहां पर रख दिया। नाउ वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स, विच वन इज द ड्राइविंग फोर्स? 24 न्यूटन। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। अच्छा, ये फॉर्मूला भी लिख देता हूं मैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो हाइट पहले तो जीरो ही है, इसलिए मैं डायरेक्ट एम जी एच माइनस एच नॉट नहीं लिख रहा, आई नो दिस एच नॉट पहले से जीरो होगा, चलो ये लिख देते हैं। वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स तो मैं स्मॉल एफ से लिख रहा हूं इनटू डिस्टेंस ओवर हियर। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज टू फाइंड आउट दिस v value here, the final velocity. What is final velocity over here in the energy equation? This one that we need to find out. ये v हमें ये मालूम करना है अभी। तो मैंने यहां पर बेटा फॉर्मूला रखा, फोर्स 24 इंटू डिस्टेंस 150, हाफ मास कितना है, मास यहां दिया हुआ है 84 kg, ऑब्जेक्ट का मास कितना दिया हुआ है 84, दैट इज दी जनरल फॉर बोथ ऑफ दीज सेक्शंस। v स्क्वायर ये हो गया, इनिशियल वेलोसिटी बेटा 3 हो गई, 3 का स्क्वायर कर दिया, m हमारे पास अगेन 84 हो गया, g 10 हो गया, हाइट हमारे पास बेटा ये देखो, ये हाइट फाइनल वेलोसिटी पर हाइट कितनी है यहां पर 150 साइन 108 साइन 08 डिग्री, प्लस फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज 13 न्यूटन, डिस्टेंस कितना है यहां पर 150। तो एनर्जी इक्वेशन में सब कुछ लिख दिया सिवाय एक चीज के, विच इज वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, जो कि मुझे मालूम करनी है। 24 इंटू 150 इज गोइंग टू बी 3600, ये हो जाएगा 42 टू 1 जार 280 242 184, v स्क्वायर माइनस 9, 84 इंटू 10 इंटू 150 साइन 0.8 डिग्री, दिस वैल्यू ओवर हियर, ये कैलकुलेटर से निकालें। The value of this is 1759.23 plus 30 into 50 is 1950। तो बेटा इन सारी वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस करूंगा, आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दीस वैल्यूज, 3600 से माइनस करूंगा, वी डोंट हैव इनफ स्पेस, तो यहां पर ये हो जाएगा माइनस 109.23। So we got the value of v which is 2.529, 2.53 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, we got the answer of velocity which is 2.53 मीटर पर सेकेंड। Now moving on to question number 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा हमारे पास क्या है, द पार्टिकल ऑफ मास 0.6 kg इज प्लेस्ड ऑन अ रफ प्लेन which is inclined at an angle of 35 degree, लिखा हुआ है, to the horizontal the particle is kept in equilibrium by horizontal force of magnitude p newton acting in vertical plane containing a line of greatest slope, the coefficient of friction between the particle and the plane is 0.4, find the least possible value of p। तो देखो बेटा आपके पास यहां पर अब फोर्सेस के कंपोनेंट्स बनाने, देखो ये जो फोर्स है ये पैरेलल टू दी हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो अगर मैं इसे कंपोनेंट्स बनाता हूं ना, यहां पर एक ये कंपोनेंट बना,
The angle over here is going to be 35. This is going to be R. मैं इसका वेट कंपोनेंट भी बना लेता हूं. ये 35 डिग्री हो जाएगा. ठीक है ना. आपको मैंने बताया था बेटा, ये 35 है, ये भी 35, ये भी 35 होंगे. नाउ दिस एंगल ओवर हियर, दिस इज वेट. ये W cos 35, this is W sin 35. The frictional force over here is going to be the direction over here. This one is the friction force. हमने सारे कंपोनेंट्स बना लिए यहां पर. हमें लीस्ट वैल्यू ऑफ पी चाहिए. अच्छा, यहां पर उन्होंने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया, दैट इज 0.4. तो मैं पहले इसका एक यूज केस बता रहा हूं कि इसका यूज यहां पर क्या होगा. देखो बेटा, म्यू बराबर होता है एफ ओवर आर के, फ्रिक्शन फोर्स ओवर नॉर्मल कंपोनेंट के. ये है 0.4 के बराबर, मैंने 0.4 रख दिया. तो फ्रिक्शन फोर्स बराबर हो गई 0.4 इंटू आर. सेकेंडली मैं यहां पर वेट भी निकाल रहा हूं. वेट बराबर होता है mg के. मास हमारे पास 0.6 है, g इज 10, वेट इज 10. तो जहां मैं w की जगह 10 लिख दूंगा, आप समझ जाएगा मैंने w की जगह 10 क्यों लिखा है मैंने. सॉरी, 6 6 न्यूटन, नॉट 10. अब देखो, मैं यहां पर इक्विलिब्रियम स्टेट है ना, तो यहां पर देखो, अब ये वाली फोर्स R बराबर हो जाएगी W cos 35 प्लस दिस फोर्स के. ये वाली फोर्स के कंपोनेंट क्या है, इसको भी लिख लेते हैं. दिस वन इज P ये P sin 35, ये P cos 35. ये R अपवर्ड फोर्स और P sin 35 डाउनवर्ड फोर्स और W cos 35 भी डाउनवर्ड फोर्स है. तो डाउनवर्ड कंपोनेंट अपवर्ड कंपोनेंट. ठीक है जी. अब यहां पर हम लोग बेटा R बराबर रख लेंगे P की वैल्यू. W 6 हो जाएगा, 6 cos 35. मैंने इसको अपडेट कर लिया. वी गॉट वन ऑफ द इक्वेशन हियर. अब देखो यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स स्लाइडिंग अप एंड दिस इज P cos 35. और ये बराबर होगा W sin 35 के, विच इज दिस फोर्स. देखो, फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड, P cos 35 upward. I'm going to put the value of W here, that is 6 sin 35. अब देखो, ये दो इक्वेशंस तो आ गई मेरे पास. इसमें F और P अननोन है, इसमें R और P कॉमन है, अननोन है. तो मैंने यहां पर करा F की जगह 0.4 R लिख दिया इस इक्वेशन में. अब देखो, दो इक्वेशन आ गई, इनमें सिर्फ दो अननोन है, जैसे P और R. अब मैं यहां पर ये पूरी इक्वेशन में 1 से ना R के लिए यहां पर पुट इन कर दूंगा. 0.4 इंटू P sin 35 प्लस 6 cos 35 प्लस P cos 35 इक्वल टू 6 sin 35. जीरो पॉइंट फोर इंटू पी साइन 35, 0.4 इंटू 6 is 2.4
cos 35, this is p cos 35 equals to 6 sin 35. अब देखो इन दोनों टर्म्स में से आई एम टेकिंग p कॉमन, 0.4 इंटू साइन 35 प्लस कॉस 35, 6 sin 35 minus 2.4 cos 35. So 0.4 sin 35 plus cos 35. I'm going to put everything in the calculator. I'm writing the answer here. P is equals to the value of P is equals to 1.407. That is equals to 1.41 Newton. This is your final answer. तो हमें P चाहिए था, हमने पहले को P निकाल लिया, P को फाइंड आउट कर लिया. Now in question number 6, it says a particle P starts at rest and move in a straight line from a point O. At the time t second after leaving O, the velocity of P is v meter per second is given by v equals to bt plus ct 3 by t की power 3/2, where b and c are constant. P has velocity 8 meter per second when t equals to 4 and has velocity 13.5 meter per second when t equals to 9. So that b equal to 3 and c equal to minus 0.5. इसमें अब आपकी साइमल्टेनियस इक्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए. ये वेलोसिटी वाला फंक्शन दिया हुआ है, वेलोसिटी 8 है, टाइम 4 है. तो बेटा ये जगह 4 की पावर 3/2, इक्वेशन में 1 आ गई. देन वी हैव वेलोसिटी 13.5 है, टाइम 9 है. तो 13.5 is equals to 9b, 9 की पावर 3/2, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 का स्क्वायर 27. These are your two equations. अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है बस. देखो मैं इस इक्वेशन को, स्पेस का मैं यहीं पर लिख रहा हूं, इस इक्वेशन को आई एम मल्टीप्लाइंग विद 9 और इस इक्वेशन को आई एम मल्टीप्लाइंग विद 4. सो इट बिकम 72 प्लस 36b, 72 सी यहां पर आ गया, और 13.5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 54, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 36b, 4 multiplied by 27 is 108c. I'm going to subtract these equations. 72 minus 54 is 18. और 72 minus 108 is minus 36c. तो c की वैल्यू आई एम गेटिंग minus 1/2. Just put this value in any of the equation, in this equation or this equation. The value of b you are going to get c की वैल्यू minus 1/2. I'm putting it over here. Become minus 4, 8, 12. B value is 3 over here. You're getting B value 3. हमने शो कर दिया. माइनस सी को माइनस 0.5 लिख दें आप यहां पर, जिस तरह उन्होंने लिखा हुआ है. वंस यू गॉट दिस वैल्यू, तो मैं वेलोसिटी वाले फंक्शन को अपडेट कर लेता हूं. सी के लिए 0.5, टी की पावर 3/2.
अब देखो यहां पर they are saying find the acceleration of the p when t equals to 1. You take the derivative of v, it becomes acceleration. तो देखो 3d का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 0.5, it becomes 3/4. 3/2 minus 1 is 1/2. So this is acceleration 3 minus, और t की वैल्यू मैं क्या पुट करूंगा 1 टू गेट द एक्सेलेरेशन. 1 की पावर, एनीथिंग 1 टू द पावर इज 1 ही होता है. 3 minus 3/4 over here is 9/4, which is you can say 2.25 meter per second square. ठीक है. अब देखो यहां पर कह रहा है फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी वेयर पी इज एट इंस्टेंटेनियस रेस्ट. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओ एट दिस इंस्टेंट. अब देखो यहां पर पी जो स्टार्ट कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ना. तो ओ से स्टार्टिंग किया था, ओ पे रेस्टिंग पोजीशन थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, डिस्टेंस 0 था, इनिशियली टाइम 0 था. तो देखो यहां पर वो आगे किसी पॉइंट पर पहुंचा और यहां पर इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर पहुंचा. तो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर बेटा वेलोसिटी 0 होती है. तो कह रहा है टाइम कितना था यहां पर. तो मेरा जो वेलोसिटी वाला फंक्शन निकाला ना आपने, ये जिसमें आपने सी और बी की वैल्यू निकाल ली थी, मैंने इसको कॉपी करा यहां पर. मैंने वेलोसिटी के 0 लिखा. आई टुक टी कॉमन हियर, सिकम 3 minus 0.5 टी की पावर 1/2. ये 3/2 में दिस 3/2 मीन्स 1.5. तो मैंने 1 कॉमन निकाल लिया, 0.5 बच गया यहां पर. तो आइदर टी इक्वल टू 0 और 3 minus 0.5 टी की पावर 1/2 इज इक्वल टू 0. तो टाइम 0 तो वेलोसिटी 0 तो तब भी थी जब टाइम 0 था इनिशियली. तो 3 इज इक्वल टू 0.5 टी की पावर 1/2. 3 डिवाइड बाय 0.5 इज 6. स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, टी की वैल्यू 36 आ जाएगी. तो 36 सेकेंड्स इज गोइंग टू बी योर आंसर. टाइम बेटा सेकंड्स में होगा क्योंकि द वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दी हुई थी. देन इट सेज फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओ एट दिस इंस्टेंट. हमें डिस्टेंस मालूम करना है. तो बेटा इसी वेलोसिटी वाले फंक्शन को अगर मैं इंटीग्रेट कर लूं, so I'll get a distance. और इंटीग्रेट किस तरह कर दूं, रिस्पेक्ट टू टाइम. 0.5 डिवाइड बाय 5/2 एड 1 दी पावर 3/2 प्लस 1. 5/2 डिवाइड बाय 5/2 प्लस सी हो गया. 0.5 डिवाइड बाय 5/2 so become 1/5 टी की पावर 5/2 प्लस सी. अपर लिमिट माइनस लो लिमिट. आप लो लिमिट लगाओगे ना तो बेटा जीरो ही आएगा ये टी की जगह आप जीरो लगा रहे हो. प्लस सी माइनस सी वैसे ही कैंसिल हो जाएगा. 36 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2. जो भी आंसर आएगा बस इसी से आएगा. प्लस सी माइनस सी कैंसिल, ये पूरा जीरो हो गया.
From the calculator you are getting the answer 38.8 मीटर। ये डिस्टेंस निकल कर आ गया। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है फाइंड अ स्पीड p एट डिस्टेंस व्हेन इट रिटर्न्स टू o। अब देखो ऑब्जेक्ट आगे गया, वापस से पीछे आया, तो देखो आपके पास वो कह रहा है किस स्पीड से वापस आया। जब ओ पर आया तो उसकी स्पीड क्या थी। तो देखो मैंने यहां पर सबसे पहले ये करा कि मैंने डिस्टेंस का यहां पर फंक्शन इस्तेमाल करा, दैट वाज 3d² अपॉन 2 -1/5 t/5 प्लस c। ये इंटीग्रेट करके निकाला था ना। अब देखो टाइम जीरो पर डिस्टेंस जीरो था, तो सी की वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो इसलिए यहां पर मैं सी की वैल्यू लिख नहीं रहा। डिस्टेंस ये आ गया हमारे पास, टाइम जीरो पर एस की वैल्यू जीरो होगी, तो उससे सी की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। अब मैंने क्या करा यहां पर, मैंने बेटा यहां पर जब वो घूमकर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो। अब यहां पर देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आया, -1/5 t/5/2 3/2 रिमेन सेम, मतलब 5। तो बेटा आंसर कितना आ रहा है, बेसिस से मैं पावर सब्ट्रैक्ट करा दो, 5/2 -2 t 15/2 t की पावर 1/2 आ गई। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें, you will get the value of t which is 25/4, जो कि आ रही है 56.25 सेकेंड्स। सर आपने टाइम क्यों निकाला ये। देखो जब वो रिटर्न कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी मालूम करनी है, वेलोसिटी का तो फंक्शन ये दिया हुआ इन्होंने। वेलोसिटी का फंक्शन मैंने ये निकाला था ना स्टार्टिंग में ही, 3t माइनस 0.5 टी की पावर 3/2, 3t माइनस 0.5 टी की पावर 3/2। अब इसमें टाइम की जगह क्या रखोगे, 56.25। जस्ट पुट एवरीथिंग इन द कैलकुलेटर, यू विल गेट द वेलोसिटी कि जिस वेलोसिटी से वापस ये अपने क्या कहते हैं ओरिजिनल पोजीशन पर आया है, या डिस्प्लेसमेंट अब जीरो हो गई थी हमारे पास, ओरिजिनल कंडीशन में आया था। तो दैट वैल्यू इज -42.1875। तो दिस इज गोइंग टू बी -42.2 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा यहां पर। 9 क्वेश्चन में 7, there are certain levels over here. Two particles p and q of mass is 2 kg, p 2 kg का है, q 0.25 kg का, respectively are connected by a light inextendable string that passes over a fixed smooth pulley. Particle p is on the inclined plane at an angle of 30 degree to the horizontal. Particle q hangs below the pulley. 3 points a, b, c lie on the greatest slope of the plane. A, b 0.8 meter, b, c is 1.2 meter. Particle p is released from the rest at a with string taut and slides down the plane. पार्टिकल पी को रेस्टिंग पोजीशन छोड़ा और ये प्लेन में स्लाइड डाउन कर रहा है। ड्यूरिंग द मोशन ऑफ पी फ्रॉम ए टू सी, ड्यूरिंग मोशन फ्रॉम ए टू सी, क्यू डज नॉट रीच द पुली।
क्यों ऊपर तक रीच, पूरी तक रीच नहीं किया? जब पी यहां से सी पर आया ना, ए से सी पर आया, क्यों पूरी तक नहीं पहुंच पाया? द पार्ट ऑफ द प्लेन फ्रॉम ए टू बी इज रफ, कह रहा है ये पार्ट रफ है, with coefficient of friction 0.3 between the p plane and p and the part of the plane from b to c is, कह रहा है ये स्मूथ सरफेस है। फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ p between a and b, कह रहा है a और b के दरमियान एक्सेलरेशन कितनी है, जरा वो निकाल के दिखा दें। देखो बेटा, सबसे पहली बात, उधर a और b रफ सरफेस है, तो इधर म्यू जो दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है 0.3, और म्यू बराबर होता है बेटा हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स ओवर आर के, तो 0.3 इंटू एफ ओवर आर, सो आई एम गोना गेट द रिफ्लेक्शन फोर्स 0.3 इंटू आर, ये हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगी। मैंने सुना इसको कल अभी आर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब जरा ना थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। डिटेल में कैसे जाएंगे? देखो बेटा, मैं यहां पर इसका वेट कंपोनेंट बनाऊंगा। वेट कंपोनेंट के ये देखो, ये कंपोनेंट्स बनाए मैंने। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था जो यहां पर एंगल 30 है, दिस एंगल इज ऑल्सो गोइंग टू बी 30 है। दिस इज गोइंग टू बी द वेट 20, वेट हो गया 20 cos 30, ट्वेंटी साइन 30, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है, तो इस इधर हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रही होगी, उधर मैं फ्रिक्शनल फोर्स बना देता हूं यहां पर। दिस इज गोइंग टू बी अ फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना? अब देखो यहां पर आप मुझे बताओ, इसका आर का कंपोनेंट भी बना लेते हैं, ये आर कंपोनेंट। तो आप मुझे बताओ आर कंपोनेंट किसके बराबर है? 20 कॉस 30 के बराबर है। आर बराबर है 20 कॉस 30 के। तो आप मुझे बताओ आर की वैल्यू यहां से, इफ आई एम गोइंग टू पुट इट ओवर हियर, एफ इक्वल्स टू 0.3 इंटू आर। यहां पर बेटा मैं आर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देता हूं, दैट इज 20 cos 30, सो आई गेट द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज 3√3। अब मैंने क्यू निकाली है, फ्रिक्शनल फोर्स 3√3, आई एम आपको दिखाता हूं। उसने बोला हुआ है ए और बी के दरमियान क्या एक्सेलरेशन है वो निकाल के दिखा दो। देखो बेटा, अगर मैं क्यू ऑब्जेक्ट को फोकस करूं ना, तो क्यू ऑब्जेक्ट पर बेटा आपके पास, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि पी नीचे की तरफ जा रहा है, इसने बताया हुआ है। पी इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट ए विद द स्ट्रिंग टॉट एंड स्लाइड्स डाउन द प्लेन। तो इसका मतलब ए पी नीचे जा रहा है, तो क्यू ऊपर जाएगा। क्योंकि टेंशन ज्यादा है, वेट कम है, टेंशन माइनस वेट यानी नेट फोर्स बराबर हो जाएगी एम ए के। अच्छा, वेट कितना है टी का, क्यू का? 0.25 केजी मास है, तो 2.5 न्यूटन इसका वेट हो जाएगा। 0.25 मास इंटू ए के बराबर हो गया। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अच्छा, इधर से ना मैं टी को सब्जेक्ट बना रहा हूं, मुझे एक्सप्रेशन निकालनी है ना, तो मैंने टी को सब्जेक्ट बना लिया। आई गॉट टी एज अ सब्जेक्ट नाउ फॉर पी ऑब्जेक्ट। मैं पी ऑब्जेक्ट की बात करता हूं। पी ऑब्जेक्ट जब यहां पर जा रहा होगा नीचे, तो बेटा इसकी नेट फोर्स क्या हो जाएगी? 20 sin 30। ये 20 sin 30 नीचे की तरफ जा रहा है, तो 20 sin 30 फिर फोर्स अपवर्ड है और टेंशन भी अपवर्ड होगी, तो माइनस फ्रिक्शनल फोर्स माइनस टेंशन बराबर हो जाएगा एम ए के। तो आप मुझे बताओ 20 sin 30 का आंसर कितना आ रहा है कैलकुलेटर से? sin 30 होता है 1/2, 20 मिला 1/2 10 हो गया। फ्रिक्शनल फोर्स 3√3 है, टेंशन ये लिख दिया, एम की वैल्यू, पी का मास कितना है? 2 kg है, मास लिख दिया बेटा 2 इंटू ए।
अब इधर मैं यहां पर लिख रहा हूं टेंशन की वैल्यू, मैं टेंशन की वैल्यू न्यूमरेटर इक्वेशन में 1 से पिक कर रहा हूं। अब देखो यहां पर आई एम गोइंग टू मेक 0 10 माइनस 3 √3 माइनस 2.5 2a प्लस 0.25, ये हो जाएगा 2.25 डिवाइड बाय 2.25 1.0239 एक्सप्रेशन आ गई बेटा 1.03 में लेकिन 1.02 आ रही है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज योर एक्सलेशन ओवर हियर। ठीक है ना। अब ये एक्सलेशन बेटा ए से बी के दरमियान है। नाउ दे आर सेइंग हेंस फाइंड द स्पीड ऑफ पी एट सी। कह रहे सी पॉइंट पर हमें पी की स्पीड मालूम करके दिखा दो। अब देखो यहां पर दो तरह की सरफेसेस हैं, पी से बी रफ सरफेस है और बी से सी स्मूथ सरफेस है। दिस वन इज स्मूथ, तो हमें अलग से दोनों को डील करना पड़ेगा। मैं ए से बी जाता हूं। ए पर बेटा हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। लेट मी जस्ट कॉपी दिस डायग्राम। तो देखो हैंस फाइंड पी फ्रॉम सी, तो देखो यहां पर हमारे पास ए पर इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है। तो अब हम बी पर निकालेंगे, यानी ए टू बी का डिस्टेंस, ए टू बी को पहले हम जरा फॉलो करते हैं। तो जब हम ए टू बी को फॉलो करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as के बराबर है। वी डोंट नो द फाइनल वेलोसिटी है, मुझे यहाँ की फाइनल वेलोसिटी नहीं पता। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। ए की वैल्यू बेटा हमने ऊपर निकाली है 1.0239, वर्किंग वैल्यू ले रहा हूं। एस ए टू बी है 0.8, ये लिखा हुआ। तो आफ्टर दिस सिंप्लीफिकेशन मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लूंगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1.0239 मल्टीप्लाई बाय 0.8 स्क्वायर रूट 1.279 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी हो गई। अच्छा, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स बी टू सी। तो देखो बी टू सी में जो यहां पर फाइनल वेलोसिटी आई है 1.279, वो बी टू सी की बेटा इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। बी की इनिशियल वेलोसिटी और इसकी फाइनल वेलोसिटी बेटा मुझे मालूम करनी है। लेकिन बेटा मैं यहां पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि बी टू सी में एक्सेलरेशन क्या है मुझे नहीं पता। मुझे डिस्टेंस पता है, एक्सेलरेशन नहीं पता बी टू सी में। तो मैंने बोला भाई काम करते हैं, बी टू सी के लिए ना इस बात को जरा गौर से देखिएगा। पी ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस करा बी टू सी के लिए। तो बी पर अगेन वो सारे वेट कंपोनेंट्स में बनाऊं जो मैं पहले बना रहा था, कि आपके पास यहां पर ऑब्जेक्ट बी पर है। दीज आर दी कंपोनेंट्स। ठीक है ना, मैंने ये बना दिया ताकि क्लैरिटी रहे। अब देखो आपके पास बी पर जो अगर पी पॉइंट है तो W sin 30 डाउनवर्ड फोर्स
और बी टू सी कोई भी फोर्स, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, माइनस टेंशन, टेंशन तो ऑब्वियसली यहां पर अपवर्ड होगी, बराबर हो जाएगा बेटा एम ए के। तो डब्ल्यू साइन 30 हो जाएगा, डब्ल्यू का वेट, वेट हमारे पास ऑब्वियसली इसका जो है वो 20 है, 20 साइन 30 माइनस टेंशन 20 इंटू ए, 20 साइन 30 हो जाएगा 10, ए हमें नहीं पता। अब देखो मैंने यहां पर करा क्या, मैंने अब क्यू को फोकस करा, मैंने क्यू पर टेंशन माइनस वेट जो हमारे पास पहले भी था, इसी टेंशन अपवर्ड है वेट नीचे, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर रहा है तो टेंशन माइनस वेट बराबर हो जाएगा एम ए के। तो वेट ऑफ क्यू कितना हमारे पास 2.5, 0.25 उसका मास है तो 2.5 हो गया, मास 0.25 ए हो गया। ठीक है, अब मैं यहां पर एक काम करता हूं, लेट जस्ट मेक 10 माइनस 20 ए, यहां पर टी को सब्जेक्ट बना लिया मैंने फ्रॉम दिस इक्वेशन, और बेटा इसको मैंने यहां पर पुट कर दिया 10 माइनस 20 ए माइनस 0.25 ए हो गया। तो बेटा मेरे पास यहां पर क्या वैल्यूज आ जाएंगी, 10 - 2.5 इज 7.5। अच्छा, ऊपर ऑब्जेक्ट का मास 2 था, मैंने 20 लिख दिया है, मैं यहाँ पर बस एक करेक्शन कर लूँ मुझे। तो 7.5 डिवाइड बाय 2.25, ये आ रहा है 10/3 एक्सेलेरेशन आ रही है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट सर एक्सेलेरेशन क्यों निकाली, हमें तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी चाहिए। तो बेटा अगर आपको इस पॉइंट पर वेलोसिटी चाहिए तो हमें यहाँ पर थोड़ी स्पेस चाहिए, हमने स्पेस का कॉलम बनाया है यहाँ पर। अब देखो v बराबर है u प्लस ए टी के, सॉरी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर है 2as के। तो वी स्क्वायर हमें चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी 1.279 का स्क्वायर हो जाएगा, एक्सलेशन इज 10/3, और डिस्टेंस बेटा यहां पर क्या आ रहा है 1.2। आई एम गोना पुट ऑल वैल्यूज हियर, 2 मल्टीप्लाई बाय 10/3 मल्टीप्लाई बाय 1.2 प्लस 1.279 का स्क्वायर, 9.635, I'll take the square root, फाइनल वेलोसिटी 3.104। तो बेटा ये आपके पास 3.10 मीटर पर सेकंड आपके पास फाइनल वेलोसिटी निकल कर आ गई, किस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर। ठीक है जी। अब देखो आपसे कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन फॉर पी टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी, कह रहे हैं ए टू सी जाने पे कितना टाइम लगा। तो हमने अगेन पहले बी टू सी निकाला, ए टू बी निकाला, v बराबर है u प्लस ए टी के। ए टू बी में बेटा हमारे पास फाइनल वेलोसिटी थी 1.279, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन बेटा हमारे पास कितनी आ रही थी 1.0239, 1.0239, और टाइम ये रहा। तो 1.279 डिवाइड बाय 1.0239, तो टाइम की वैल्यू बेटा यहां से आ जाएगी 1.250 सेकेंड्स। और बी टू सी को अगर मैं फोकस करूं तो v इक्वल्स टू
u प्लस ए टी। बी टू सी में बेटा फाइनल वेलोसिटी हमारे पास थी 3.104, इनिशियल वेलोसिटी थी बेटा हमारे पास 1.279, एक्सेलरेशन हमारे पास 10/3 थी, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 10, ये दो टाइम्स आ गए ए टू बी टू सी का। तो ए टू सी जाने का टोटल टाइम कितना हुआ? 1.250 प्लस 0.5475, टोटल टाइम इज 1.7975 सेकेंड्स। तो दो डेसिमल प्लेस में 1.80 सेकेंड्स। यहां पर बेटा हमारे पास टोटल टाइम निकल कर आ जाएगा। दिस वॉज द लास्ट पार्ट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट लेट मी नो। या आपके पास लास्ट पार्ट था?